So very good afternoon, good morning, good evening. Today we are going to discuss in Unit 1 HAP intracellular signaling pathway. So already we have covered one of the intracellular signaling pathway, GPCR, G protein coupled receptors. That is also one of the example of intracellular signaling pathway. So intra means inside the cells, how these pathway is going to activate further signaling, and ultimately you will get the effects, right? So intracellular signaling pathways, one of the example, as I said, GPCR, which we have already covered in earlier videos. But today we are going to discuss about few of the intracellular signaling pathway which are very important. One of them is apoptotic signaling pathway. Apoptotic signaling pathways. So these are the pathways which is going to results apoptosis, and apoptosis is cell death. So this is the pathway. Ultimately इस pathway अगर आप चलोगे तो आप मरोगे. That is your apoptotic signaling pathway. So this is apoptosis means cell death, right? So apoptotic signaling pathways is of mainly two types: extrinsic pathways and intrinsic pathway. Extrinsic and intrinsic. Extrinsic signaling pathway, apoptotic signaling pathway, as its name indicates, it's going to activate outside the cells, and intrinsic means it's going to activate inside the cells, and ultimately both will going to result in the death of the cells, right? So apoptosis is your normal cell is going to die through the process of apoptosis. That is being also called it a natural cell death, right? And if there is pathological cell death is your necrosis. But of course apoptosis can be natural, can be pathological as well. So in extrinsic signaling pathway, as its name indicates, something is going to activate from outside the cells and result in the death of the cell. So what is going to activate, what something is going to activate is, we are talking about extrinsic signaling pathways of apoptosis. Extrinsic. So this is your cell, right? So in the cells there is a receptors, because this ultimately pathway is going to result in the death. So this will be called death receptors. Death receptors. And the ligand, which is molecule which is going to bind with that, we call it death inducing ligand, right? Death receptors, death inducing ligand. We are talking about extrinsic pathway of apoptosis. So extrinsic means outside the cell something is going to activate, and ultimately it is going to result in the death of the cell. So in simpler way, ultimately it going to result in the disc formations. Disc. After attaching the ligand with the death receptors, further it's going to do the formation of disc. Disc is death inducing signaling complex. Death inducing signaling complex. Death inducing signaling complex. That is your disc. Death inducing signaling complex. And this signaling complex is going to further activate the caspases. Caspases. Particularly pro-caspase 9 will active into the caspase 9, and then further ultimately it going to activate caspase 3. And caspase 3 is the one of the caspase which act on the DNA and going to do the fragmentation of DNA. And DNA fragmentation is the hallmark of apoptosis, right? It's a sign of apoptosis. So what happens in extrinsic signaling pathway of apoptosis? Ligand is binding with the death receptors. It's going to do the formations of one complex. That complex is death inducing signaling complex, that also we call disc, and this disc is going to activate the caspases, and finally your caspase 3, activated caspase 3 will act on the DNA and do the fragmentation of DNA. DNA को तोड़ देगा, and that is a sign of your apoptosis, and cell will die, right? तो extrinsic pathway apoptosis में क्या हो रहा है? Ligand, इसका नाम ही इंडिकेट करता है, एक्सट्रिंसिक मीन सेल के बाहर से कोई सिग्नल चल रहा है, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है. क्योंकि इस रिसेप्टर का नाम डेथ रिसेप्टर इसलिए रखा है क्योंकि इस रिसेप्टर से कोई चीज़ बाइंड करेगी तो इसकी वो अल्टीमेटली डेथ करवाएगी. तो डिस्क फॉर्मेशन हुआ, डिस्क से कैस्पेजेस, कैस्पेज 3 जो है पर्टिकुलरली डीएनए को तोड़ देगा,
एंड दैट इज बी कॉल्ड डीएनए फ्रेगमेंटेशन इज द हॉलमार्क। अगर आपको एक्सपेरिमेंटली चेक करना है डीएनए का फ्रेगमेंटेशन, सो यू कैन डू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप एवरीवन यू नोज अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपको एक्सपेरिमेंटली चेक करना है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो रही है नहीं, सो यू कैन डू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी दो तरह की हैं, वन इज हॉरिजेंटल, अनदर वन इज वर्टिकल। मेनली इट्स ऑफ टू टाइप्स, राइट। एक हॉरिजेंटली, एक आपने देखा होगा, आप ऐसे जेल चलाते हो, राइट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक आप ऐसे जेल चलाते हो, तो दिस इज योर वर्टिकल, दिस इज योर हॉरिजेंटल, राइट। तो जो आपकी वर्टिकल असेंबली जो है जिसमें आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, दैट पर्टिकुलर वी आर यूजिंग टू सेपरेट द प्रोटीन्स। तो इसमें जो जेल बनते हैं दैट इज योर, वन इज योर रिजॉल्विंग जेल, वन इज स्टैकिंग जेल, अनदर वन इज योर स्टैकिंग जेल एंड सॉरी, अपर जो होगा वो स्टैकिंग जेल होगा, नीचे जो होगा वो रिजॉल्विंग जेल। तो इस तरह की जो जिसमें आपका एक्राइलामाइड, बिस एक्राइलामाइड, टैम, एपीएस, अमोनियम परसल्फेट, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आपको ये सेंस हो जाना चाहिए कि वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्टिकल है और वो हम यूज़ करते हैं अगर हमें प्रोटीन्स को सेपरेट करना है मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली। तो डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके प्रोटीन सेपरेट हो जाएंगी, राइट। सो दैट इज योर, पर इस केस में जो हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज डीएनए फ्रेगमेंटेशन। अगर आपको डीएनए की फ्रेगमेंटेशन चेक करनी है तो उस केस में आपको हॉरिजेंटल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलानी पड़ेगी। इन हॉरिजेंटल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वेल नोन इज योर अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोज की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करते हो, डीएनए सैंपल डालोगे, यू विल गेट द DNA fragmentations if your compound is going to induce DNA fragmentation. So for DNA fragmentations, you are running agarose gel electrophoresis. And after these gels, you have to stain it, like here we are staining with ETBR, here you are staining with Comessi blue, silver staining, all these kind of staining techniques. But of course, अगर हम proteins की बात करें, that we will discuss in further as well, कि how to separate the proteins. But up to this, you have to understand, if you want to check experimentally कि मेरा सेल डेथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन हो रही है, यू कैन डू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ वी हैव ए फ्लो साइटोमीटर एज वेल। बाय द फ्लो साइटोमीटर्स यू विल गेट एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ द सेल्स विच इज गोइंग फॉर द एपोप्टोसिस। सो आई थिंक इफ यू रिमेंबर इन सेल composition of cell membrane, I told you there is a one composition of lipid which is present inside the cell is phosphatidylserine. It's inside the cells in the normal cell, but when cells are going for the apoptosis, it comes at the membrane, cell membrane. So annexin 5 is a dye which is going to bind with it and you will get the fluorescence. तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कितने सेल मेरे एपोप्टोसिस में जाने वाले हैं, राइट, सेल डेथ के लिए जाने वाले हैं। कैसे पता चलेगा? क्योंकि नॉर्मली एक आपका लिपिड है फॉस्फोटिडाइलसीरिन, वो नॉर्मल सेल है उसके अंदर की साइड है, पर जब सेल मरने वाला होता है तो वो क्या होता है, फॉस्फोटिडाइलसीरिन सेल के सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आएगा तो हमारे पास एक डाई है एनेक्सिन 5 डाई, वो उसके साथ बाइंड करेगी और फ्लोरेसेंस देगी। तो जितने सेल्स पे वो सरफेस पे एक्सप्रेस हो रहा है आपको ये पता चल जाएगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली 100 सेल्स हैं आपके पास, तो 100 सेल्स में अगर 50 सेल्स के ऊपर फॉस्फोटिडाइलसीरिन है और 50 के ऊपर नहीं है, तो 50% पॉपुलेशन जो है आपकी सेल्स की वो मरने वाली है एपोप्टोसिस के थ्रू as compared to other cells. Other cells are healthy. So this is your extrinsic. Now next one is intrinsic signaling pathway of the apoptosis. Intrinsic signaling pathways of apoptosis. Intrinsic signaling pathways of apoptosis. सो इंट्रिंसिक मीन्स सेल के अंदर, बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी, सेल के अंदर से ही कोई चीज़ ऐसी मीन्स इनिशिएट होगी जिसकी वजह से सेल मर जाएगा। एंड श्रिंकेज, सेल जो आपके डीएनए फ्रेगमेंटेशन होती है तो सेल श्रिंक करता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द साइन ऑफ एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस में सेल स्वेल करेगा और ब्रस्ट कर जाएगा, राइट। तो इंट्रिंसिक सिग्नलिंग पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस इज इनसाइड द सेल्स। तो ये आपका सेल्स है, तो इनसाइड द सेल्स पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो देयर, राइट, एंड यू ऑल नो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए स्टोर हाउस ऑफ द सेल्स, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली क्या करेगा आपका, ऑक्सीजन इज देयर कंज्यूमिंग, ऑक्सीजन इज यूज्ड
for various processes. Oxidative phosphorylation is happening, electron transport chain is there, right? All these processes, this oxygen is utilized to generate the ATP, and ATP will produce the energy to the body, right? But when this oxygen is utilized, there is a generation of free radicals, right? And these free radicals are very dangerous. These free radical can do damage everywhere in the body. फ्री रेडिकल कैन डैमेज योर सेल मेम्ब्रेन, इसको डैमेज कर देंगे सेल मेम्ब्रेन को, आपके लिपिड को तोड़ देंगे, प्रोटीन्स जो भी सेल्स में प्रोटीन है उनको डिग्रेड कर देंगे, डीएनए पे एक्ट कर देंगे, एवरीवेयर इट इज़ गोइंग टू डू द डैमेज, फ्री रेडिकल्स। तो अब इसका मतलब तो ये है कि ऑक्सीजन के बिना तो आप जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन ले रहे हो और ऑक्सीजन ही मेजर सोर्स है आपके फ्री रेडिकल जनरेट करने का, और फ्री रेडिकल आपका डैमेज कर देगा पूरी बॉडी को, तो फिर भी हम जिंदा कैसे हैं? तो मीन्स देयर इज ए सम इंट्रिंसिक मैकेनिज्म बाय विच नेचर हैज़ प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट जनरेटेड फ्री रेडिकल। तो इससे बचने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, जो भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं दैट विल बी स्क्वेंज्ड बाय द एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, endogenous antioxidant enzyme like glutathione, SOD, super oxide dimestase, right? catalase, तो ये क्या है? ये हैं एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, एंडोजीनियस एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम like glutathione, superoxide dimestase, that in short form we called SOD, catalase. These are the endogenous antioxidant enzyme which will prevent us from the harmful effect of the free radical. क्योंकि ऑक्सीजन जब यूज़ हो रही है तो फ्री रेडिकल तो जनरेट होने ही हैं, तो उन फ्री रेडिकल से बचने के लिए हमारे पास बॉडी में एंजाइम्स हैं जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, ये इन फ्री रेडिकल को स्क्वेंज कर लेगा, जैसे स्क्वेंज कर लेगा, राइट? फ्री रेडिकल जनरेट हुए, फॉर एग्जांपल 100 फ्री रेडिकल जनरेट हुए, 100 इन्होंने स्क्वेंज कर ली। अब जब फ्री रेडिकल स्क्वेंज हो गए तो आपका कहाँ डैमेज कर पाएंगे? तो योर प्रोटीन्स विल नॉट डैमेज, योर लिपिड विल नॉट डैमेज, इट विल नॉट गोइंग टू डैमेज एनीवेयर, राइट? सो दैट इज द वन ऑफ द जनरेशंस ऑफ योर इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। कैसे? ये तो हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म मैंने बताया कि आपके ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम उसको स्क्वेंज कर लेंगे नॉर्मल हेल्दी बॉडी में, राइट? फॉर एग्जांपल्स आप एक्सपोज हुए, आप हैवी मेटल से एक्सपोज हो रहे हो, आप पॉल्यूशन से एक्सपोज हो रहे हो, स्ट्रेस से एक्सपोज हो रहे हो, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ योर फ्री रेडिकल जनरेशन, राइट? तो अब क्या होगा, आपका फ्री रेडिकल्स ज़्यादा जनरेट होंगे इस कंडीशंस में। जब आप अगर एक्सपोज हो रहे हो पेस्टिसाइड से, पॉल्यूशन से, या मीन्स सो मैनी थिंग्स, स्ट्रेस इज़ देयर, आपको बीमारी हो गई कोई, तो उस केस में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल जो मैं बता रहा था कि 100 जनरेट हो रहे हैं, ये 100 को स्क्वेंज करने की पावर रखते हैं। अब क्या है, आपके जब आपका एक्सपोजर है बॉडी में तो मे बी इट्स 1000, अब जनरेट 1000 हो रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 100 को स्क्वेंज करने की, आपके एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की, तो बच गए कितने? 900। तो ये 900 क्या करेंगे? दे विल डू द डैमेज। दैट देयर इज ए बैलेंस इन नॉर्मल बॉडी। बैलेंस क्या है? जितने प्रोड्यूस हुए उतने स्क्वेंज कर लेंगे, दैट इज अ बैलेंस। बट व्हेन देयर इज ए इम्बैलेंस, दैट कंडीशंस बी कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दिस इज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किसके बीच? इम्बैलेंस जो जनरेट हो रहे हैं और जिनको वो एब्जॉर्ब करने थे, स्क्वेंज करने थे, उन दोनों के बीच। या तो इनकी कैपेसिटी कम हो गई एज के हिसाब से, आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कहीं पहाड़ों में रह रहे हो, आप कोई हैवी मेटल से एक्सपोज नहीं हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, पर विद इन एज योर एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में 100 ही जनरेट हो रहे हैं, पर एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी अब 80 को ही स्क्वेंज करने की रहेगी, तो जो रिमेनिंग 20 बच गए वो आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे, राइट? सो दैट इज कंडीशंस वी कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। या तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में या तो आपके ROS स्टैंड्स फॉर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, फ्री रेडिकल, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, RNS एज वेल, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज, रिएक्टिव
nitrogen species, right? One side is this, another side is your free antioxidant enzymes like glutathione, catalase, right? SOD, that is your superoxide dimestase, superoxide dimestase. So in short form we called SOD as well. ये दोनों साइड्स है. अब क्या हुआ, ROS RNS ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और मे बी इनका जो लेवल है वो कम हो रहा है बॉडी में, तो इम्बैलेंस हो गया. इम्बैलेंस इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दिस कंडीशंस वी कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. या तो ये बढ़ गए या ये कम हो गए या ये कम हो गए, ये बराबर हैं बट ये कम हो गए, दैट इज ऑक्सीडेटिव. कोई भी इम्बैलेंस, दोनों का इम्बैलेंस को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं. एंड दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व्हेन हैपन्स इट्स गोइंग टू एक्टिवेट फर्दर सिग्नलिंग पाथवे. क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे कैसे एक्टिवेट होंगे कि सेल्स के अंदर ही. तो सेल्स के अंदर आपके क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में इम्बैलेंस हो गया, अब इसने फर्दर एक्टिवेट किया, दैट वी कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सिग्नलिंग पाथवेज, राइट? So oxidative stress signaling pathways, and ultimately it's going to result in cell death, apoptosis. Under apoptosis हम पढ़ रहे हैं oxidative stress signaling pathways, right? तो oxidative stress, ये cells है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो गया, ROS इंक्रीज हो गए, ग्लूटाथियोन या एंटीऑक्सीडेंट इंजाइम्स जो हैं वो कम हो गए, राइट? अब इस कंडीशंस में क्या होगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इट्स परमेबिलिटी इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, इट्स गोइंग टू अल्टर. सो अल्टरेशंस इन नेक्स्ट व्हाट विल हैपन्स, देयर इज ए MMP, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल अल्टरेशंस. अल्टरेशंस, तो मेम्ब्रेन की अल्टरेशंस हो गई. क्यों हुई, क्योंकि आपका इम्बैलेंस हो गया. अब जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अल्टर कर गई तो यहाँ से कुछ प्रोटीन रिलीज होंगी. अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी दो तरह की प्रोटीन है, एक ऐसी प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को बढ़ाती हैं, दूसरी ऐसी प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती हैं. जो एपोप्टोसिस को बढ़ाती हैं वो प्रोटीन का नाम है बैड बैक्स. ये कौन सी प्रोटीन है, जो एपोप्टोसिस को बढ़ाती हैं, एपोप्टोसिस को मीन्स सेल डेथ को बढ़ाती हैं, राइट? सो दीज आर दी प्रोटीन्स. क्योंकि सेल डेथ भी ज़रूरी है, राइट? तो बॉडी में आपकी कुछ ऐसी प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को बढ़ाती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन है जो इनहिबिट करती है. सो देयर शुड बी बैलेंस. तो ये एपोप्टोसिस को बढ़ाने वाली प्रोटीन्स हैं. और BCL2 ये प्रोटीन वो प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती है. अगर सेल मरना ही स्टार्ट हो जाए तो देयर इज ए बैलेंस, इन दोनों के बीच भी बैलेंस है, राइट? बैड बैक्स आर दोज प्रोटीन जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेंगी, BCL वो प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करेंगी. और कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में. तो अब क्या होगा इस कंडीशंस में, जब आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट हो गए, MMP अल्टर हो गया, तो इनका भी इम्बैलेंस हो जाएगा. तो इम्बैलेंस कैसे होगा, किसका लेवल बढ़ना चाहिए और किसका कम होना चाहिए इम्बैलेंस में, इनका लेवल बढ़ जाएगा, बैड बैक्स, क्योंकि ये वो प्रोटीन है जो सेल डेथ को इंड्यूस करेंगी, और जो इनहिबिट करने वाली थी इसका लेवल कम हो गया. तो दिस है इम्बैलेंस. अब इस इम्बैलेंस में क्या होगा, इट्स गोइंग टू एक्टिवेट योर एपोप्टोटिक सिग्नलिंग पाथवेज. सो MMP alters. So in these conditions mitochondria will release one protein, that is a cytochrome C. Cytochrome C. Cytochrome C is going to bind with another proteins, that is the APAF1. APAF1 is apoptotic proteases. A is activating factor. What is APAF? Apoptotic proteases activating factor 1. So this cytochrome C and APAF1 will make a complex, and that complex we called apoptosome. This is complex is apoptosome, right? Cytochrome C and APAF1. APAF क्या है? Apoptotic proteases activating factors.
and this apoptosome is going to activate further caspases, and ultimately again caspase 3, and caspase 3 is going to act on DNA and do the DNA fragmentations, and that is your apoptosis. But this is the caspase dependent signaling pathway. अगर इस पूरे पाथवे का नाम रखना तो आपका हो गया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मीडिएटेड caspase dependent signaling pathway of apoptosis, right? Ultimately it's apoptosis, or in smaller word you can say that it's a intrinsic pathway of apoptosis, intrinsic pathway of apoptosis, right? This is the caspase dependent. In caspase independent, as its name, so we are talking about intrinsic pathway of apoptosis. So intrinsic pathway of apoptosis में again if I summarize, तो इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस में हो क्या रहा है, इंट्रिंसिक पाथवेज ऑफ एपोप्टोसिस और इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोटिक सिग्नलिंग पाथवेज. देयर इज ए सेल, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, सेल, राइट. देयर इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. सो इन माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज ए generations of reactive oxygen species, reactive nitrogen species, their level is increased, and your antioxidant enzymes like glutathione is decreased, catalase is decreased, SOD is decreased. So this imbalance we call oxidative stress. Oxidative stress, and this oxidative stress is going to alter your mitochondrial membrane potential. So after this what happens, MMP, mitochondrial membrane potential alterations. So this mitochondrial membrane alterations, in mitochondria there are two proteins. One is apoptotic proteins like BAD and BAX. These are the apoptotic proteins, apoptotic, and there is the anti-apoptotic. Anti-apoptotic means they are going to inhibit the apoptosis. So protein name is BCL2. So what will happens when there is a oxidative stress? Oxidative stress है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अल्टर हो गया, तो आपका इनका लेवल भी डिस्टर्ब हो जाएगा. क्या होगा, बैड बैक्स का लेवल बढ़ जाएगा, BCL2 का कम हो जाएगा. अगर बैड बैक्स इज इंक्रीज एंड BCL2 इज डिक्रीज, तो क्या होगा आगे, एपोप्टोसिस होगी. तो कैसे होगी, तो आगे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया विल रिलीज वन प्रोटीन्स दैट इज द साइटोक्रोम C. Cytochrome C, and cytochrome C is going to make a complex with APAF1, and APAF1 is apoptotic proteases activating factors, that is APAF. एंड इन दोनों के कम्बिनेशंस को हम बोलते हैं एपोप्टोजोम. सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, एपोप्टोजोम, एंड दिस एपोप्टोजोम इज गोइंग टू एक्टिवेट द caspases, and particularly caspase 3 is going to act DNA and going to fragment the DNA, and that is the hallmark of your apoptosis. So this is the caspase dependent intrinsic signaling pathway of apoptosis, right? क्या हो रहा है, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत, कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया से. कैसे हो रही है, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे हो रहा है, जब आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ज़्यादा बन रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की कैपेसिटी कम हो गई है, तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. दैट इट रिजल्ट इन द अल्टरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल अल्टर हो जाएगा. ये अल्टर होगा तो आपके प्रोटीन्स का भी इम्बैलेंस हो जाएगा. सो माइटोकॉन्ड्रिया में नॉर्मली दो तरह की प्रोटीन है, एक ऐसी प्रोटीन जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करती हैं, एक ऐसी प्रोटीन जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती हैं. तो बैड एंड बैक्स वो प्रोटीन है जो आपकी एपोप्टोसिस को बढ़ाती हैं, BCL2 इनहिबिट करती हैं. तो इस केस में क्या होगा, आपके बैड बैक्स का लेवल बढ़ जाएगा, BCL2 का कम हो जाएगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक रिलीज करेगा साइटोक्रोम C को, वो बाइंड करेगा APAF1. APAF1 क्या है, एपोप्टोटिक प्रोटीएजेस एक्टिवेटिंग फैक्टर. इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोजोम. एपोप्टोजोम फर्दर कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेगा, कैस्पेज 3 फाइनली DNA को तोड़ देगा, राइट. दिस अ कैस्पेज डिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवे. तो मैंने ऐसा ये बताया कि जरूरी नहीं है हर एपोप्टोसिस में कैस्पेज का होना जरूरी है.
कुछ ऐसे भी पाथवेज हैं बाय विच कैस्पेज इज नॉट रिक्वायर्ड। तो उसमें क्या होगा, जब आपकी ये प्रोटीन्स का लेवल अल्टर हो रहा है तो ये वाला स्टेप्स नहीं होगा, इसकी बजाय आपके देयर इज ए 2 प्रोटीन्स दैट इज द एंडोन्यूक्लियस जी, endonucleases G, right? This particular endonuclease G is going to do the DNA fragmentation without involvement of caspases. तो वो भी डेथ कर देगा, right? Endonuclease G can do the death as well. So this is about your intrinsic signaling pathways of apoptosis. अब अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें कि ये आप एक्सपेरिमेंटली दीज साइंटिस्ट हैव डन दीज ऑल पाथवेज एक्सपेरिमेंटली। अगर आपको ऐसा कोई केमिकल है, आपके पास दवाई है जिसमें आप ये देखना चाहते हो कि ये क्या सिग्नलिंग, कौन से सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करेगी, कैसे करेगी, यू नीड ए सेल कल्चर एंड यू हैव टू बी एक्सपोज दीज सेल्स विद दैट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। अब आपने सेल्स को लाइज करके उसकी प्रोटीन्स निकाल ली। प्रोटीन्स आई टोल्ड यू, अगर आपको बैड बैक्स BCL2 अपाव1 साइटोक्रोम C इन सब का लेवल पता करना है तो कौन सी टेक्निक करोगे, वेस्टर्न ब्लॉट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट वेस्टर्न ब्लॉट में क्या करोगे, क्योंकि आप स्पेसिफिक प्रोटीन को मेजर करना चाह रहे हो, अगर आपने वेस्टर्न ब्लॉट करने के लिए भी आपको हॉरिजेंटल वाली असेंबली चलानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके बेसिस पे प्रोटीन्स मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगी। पर आपको देखना है पर्टिकुलर प्रोटीन, फॉर एग्जांपल आपको देखना BCL2 का एक्सप्रेशन कि जब मैंने एक्सपोज किया केमिकल के साथ तो BCL2 पे क्या इफेक्ट हुआ। तो उसके लिए आपको जो प्रोटीन आपने सेपरेट की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, वो आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ती है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर उस मेम्ब्रेन को आप इंक्यूबेट करोगे प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ। अब कौन सी एंटीबॉडी चाहिए, एंटीबॉडी कौन सी चाहिए आपको, एंटी BCL2। तो क्योंकि बाकी प्रोटीन तो बहुत सारी आ जाएंगी, ट्रांसफ़र जब आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे कर रहे हो, जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चला के किया, तो बाकी प्रोटीन भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। पर आपका इंटरेस्ट है BCL2 को, तो आपको ऐसी एंटीबॉडी चाहिए जो BCL2 को ही हाईलाइट करे। तो देयर इज एंटी BCL2 एंटीबॉडीज़ जो BCL2 को ही आपको एक्सप्रेशंस बताएगी। सो दैट इज़ लिटिल बिट अबाउट, ये सारी टेक्निक्स हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं। ROS आपको मेज़र करना है सेल्स में, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, राइट। तो ROS को मेज़र करने के लिए, अगर आपको ROS मेज़र करना है एक्सपेरिमेंटली, तो देयर इज a one dye that is DCFHDA. दिस इज अ डाई, DCFHDA डाई जो है इट्स अवेलेबल ऑन सिग्मा एज वेल एंड अदर। तो DCFH डाई जब आपकी सेल परमिएबल डाई सेल के अंदर जाएगी तो सेल्स में देयर इज एस्ट्रेजेस, राइट। तो एस्ट्रेजेस क्या करेंगे, DCFH डाई का DA रिमूव कर देंगे। सो नाउ इट बिकम DCFH, राइट। अब सेल्स के अंदर आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो जनरेट हो रहे हैं सेल्स के अंदर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, these reactive oxygen species will do the oxidation of this and this will also remove, and this DCF is fluorescence, and you will measure this fluorescence through the fluorescence spectrophotometers. तो ये भी एक, अगर आपको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का मेजरमेंट करना है सेल्स में, तो आपको क्या DCFHDA डाली, क्या करेगा DCFHDA, जब सेल्स के अंदर जाएगा, एस्ट्रेज एक एंजाइम है जो कि DA को ब्रेक डाउन कर देगा, फिर बच गया DCFH। तो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होंगे सेल्स में, वो इसको DCF को ऑक्सीडेशन कर देंगे। जितना आपका फ्लोरेसेंस, DCF का फ्लोरेसेंस आएगा, मोर द फ्लोरेसेंस मोर विल बी द ROS, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। दिस विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, दैट इज डन बाय द एक्सपेरिमेंटली। लाइक अगर आपको GSH ग्लूटाथियोन का लेवल मेजर करना है, देयर इज OPT डाई, OPT डाई परचेज कीजिए, सेल्स को इंक्यूबेट कीजिए। OPT डाई इज ऑल्सो फ्लोरेसेंस डाई। कैस्पेज 3 करना है, देयर इज ए DEVD-AFC, दिस इज ऑल्सो अगेन फ्लोरेसेंस डाई, राइट। आपको प्रोटीन के एक्सप्रेशन चेक करने हैं, जो मैंने बताया, BCL2 चेक करना है, तो यू डू द these Western blots, right? So these all are the experimental techniques. So this is all about your apoptotic intracellular signaling pathway, apoptotic signaling pathway. There is a extrinsic as well as the intrinsic as well.
So intrinsic is mainly comes under intracellular signaling pathway, but intracellular signaling pathway can be activated by outside the ligand as well. Like we have done the example of GPCR. So next signaling pathways. So in the next video we will discuss about another signaling pathway which is very important and many drugs are under clinical trials or under medicine is, that is your JAK-STAT signaling pathways. And another pathway which we will discuss is PI3K AKT mTOR signaling pathway. You might heard, the students who are working in the research, these pathways are very important nowadays, right? And we have now coming drugs as well on these pathways. So in next video we are going to discuss about these pathways as well. Thank you.